بل ٹائمز میں خوش آمدید۔ اسرائیل مشرق وسطیٰ یعنی مڈل ایسٹ میں لگاتار منمانی کر رہا ہے، لگاتار مسلم ملکوں پر چن چن کر حملہ کر رہا ہے، اور اسرائیل کو ابھی بھی روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی جا رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل ایک کھلا سانڈ ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے نشانہ بناتا ہے اور اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں، کہیں سے کوئی آواز تک نہیں اٹھتی۔ ایران پر حملہ کرنے کے بعد، ایران کے کئی ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے بعد اسرائیل نے اب شام پر حملہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ پہلے بھی شام کے کئی علاقوں کو اسرائیل نے نشانہ بنایا، حملہ کیا۔ شام کے کچھ علاقوں پر اسرائیل کا قبضہ بھی موجود ہے، اور ایک بار پھر اسرائیل نے شام کے اسودہ اور درعا کے علاقوں پر حملہ کیا ہے، ان صوبوں کو ٹارگٹ کیا ہے۔ خبر آ رہی ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو منع کیا، اسرائیل کو روکا اور کہا تم شام پر حملہ بند کرو۔ تمہیں کس نے کہا شام پر حملہ کرنے کے لیے؟ لیکن اسرائیل امریکہ کی بھی نہیں سنتا ہے، اور واشنگٹن سے منع کیے جانے کے باوجود بھی اسرائیل کا شام کے مختلف علاقوں پر حملہ جاری رہا۔ جب بشار الاسد کے اقتدار کا خاتمہ ہو گیا تھا، انقلابیوں کی حکومت بن گئی تھی، احمد الشرا وہاں کے صدر بن گئے، اس دوران بھی لگاتار اسرائیل نے شام پر حملہ کیا، اور شام کے پورے فوجی انفراسٹرکچر کو اسرائیل نے تباہ و برباد کر دیا، ختم کر دیا۔ اسرائیلی آرمی دمشق کے قریب تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ احمد الشرا بھی امریکہ کے خیمے میں جا چکے ہیں۔ سعودی عرب میں ڈونلڈ ٹرمپ گئے تو وہاں احمد الشرا سے ملاقات ہوئی۔ امریکہ نے شام پر عائد تمام پابندیوں کو ہٹا دیا۔ احمد الشرا کے سر پر $10 لاکھ کا انعام تھا، اس کو بھی امریکہ نے ہٹا دیا۔ ٹرمپ نے احمد الشرا سے ملاقات کی، جنگجو کہا، محنتی کہا، تعریف کی اور کہا تم شام کو آگے بڑھاؤ، اور ایسا لگا کہ اب اسرائیل شام پر حملہ نہیں کرے گا۔ لیکن ایک بار پھر اسرائیل نے شام پر حملہ کرنا شروع کر دیا ہے، اور ان دنوں اسرائیل نے شام کے جس علاقے پر حملہ کیا وہ السویدہ کا علاقہ ہے اور درعا کا علاقہ ہے، اور اسرائیل نے اس حملے کی وجہ بتائی ہے کہ اسرائیل نے دروز کمیونٹی پر ہونے والے حملے کی وجہ سے شام پر یہ حملہ کیا ہے۔ جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو اس وقت بھی اسرائیل نے پوری دنیا کو یہی بتایا کہ ایران نیوکلیئر توانائی حاصل کر رہا ہے، اور ایران اگر نیوکلیئر توانائی حاصل کر لیتا ہے تو پھر اسرائیل کو خطرہ لاحق ہے، اسرائیل کا وجود خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اس لیے دفاع کے طور پر، اپنے بچاؤ کے لیے کہ آگے ہمارے لیے کوئی خطرہ پیدا نہ ہو، ہم نے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ اب اسی طرح کا بہانہ بنا کر لگاتار شام پر بھی اسرائیل حملہ کر رہا ہے۔ ان دونوں سویدہ اور درعا کے علاقے پر حملہ کیا، وہاں دروز کمیونٹی رہتی ہے، اور اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ شام کی جو موجودہ حکومت ہے، شام کی جو آرمی ہے، وہ دروز کمیونٹی سے ان کے رائٹ کو چھین رہی ہے، ان کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر رہی ہے، اور اسرائیل ایسا نہیں ہونے دے گا۔ دروز کمیونٹی پر اگر حملہ ہوا تو ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے، اور اسی لیے اسرائیل نے السویدہ، درعا اور مختلف علاقوں پر حملہ کیا۔ اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے یہ بھی کہا کہ یہ حملہ کر کے اسرائیل نے شام کو دھمکی دی ہے اور بتایا ہے کہ دروز کمیونٹی کو تم اسی حال میں رہنے دو جس طرح وہ ہے، ورنہ تمہاری حکومت کا پھر تختہ پلٹ دیا جائے گا۔ یہ دروز کمیونٹی کون ہے، پہلے اس کو سمجھے۔ دروز ایک کمیونٹی ہے، دراصل جو ایک الگ فرقہ ہے جس کو کچھ لوگ مسلمان بھی گردانتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ جو دروز فرقہ ہے یہ مسلمان نہیں ہے، نہ مسلمانوں سے اس فرقہ کا ذرہ برابر بھی کوئی تعلق ہے۔ یہ فرقہ وحدانیت پر یقین تو ضرور رکھتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرقہ نہیں مانتا، نماز روزے کا یہ فرقہ بھی قائل نہیں ہے۔ اس فرقے کی جو عبادت ہے وہ ایک الگ انداز کی ہے۔ بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ جو دروز فرقہ ہے یہ اسلام، عیسائیت، یہودیت، ہندو مت، بدھ مت سب سے مل کر ایک نیا مذہب بن چکا ہے، اور اسی لیے اس کو دروز کہا جاتا ہے۔ اس فرقہ کی جو ٹوٹل آبادی اس وقت دنیا میں وہ 10 سے 12 لاکھ ہے۔ اس میں سب سے زیادہ آبادی ملک شام میں پائی جاتی ہے، اس کے بعد لبنان میں، اردن میں اور اسرائیل میں بھی۔ کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ اس فرقے کا یہودیوں سے گہرا تعلق ہے، گہرا رشتہ ہے۔ اس مذہب کا یا کہہ لیجیے اس فرقے کا وجود 11ویں
14वीं सदी में फातमी खिलाफत के दौरान आया। दरअसल खलीफा अल-हाकिम बिअम्रिल्लाह के ज़माने में एक नया फ़िरक़ा बना, इसने एक नया अक़ीदा तैयार किया और इसके बाद ये जो फ़िरक़ा है लगातार मुसलमानों को नुकसान पहुँचाता रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि जो फ़िरक़ा है ये अंदरूनी तौर पर इज़राइल से करीब है, या कह लीजिए ये इज़राइल के नेटवर्क का हिस्सा है। अब शाम के अस्वेदा और दरा के इलाके में ये फ़िरक़ा खामोशी के साथ इज़राइल को सपोर्ट कर रहा है, इज़राइल के एजेंडा को वहाँ आगे बढ़ा रहा है, जासूसी कर रहा है। जब बशारुल असद की हुकूमत थी तो उस हुकूमत से भी इस कम्युनिटी की नहीं जमती थी। बशारुल असद ने भी इसके ख़िलाफ़ कई बार कार्रवाई की, लेकिन बशारुल असद को कामयाबी नहीं मिली और इसराइल के दबाव में बशारुल असद ने इसके ख़िलाफ़ कोई भी एक्शन नहीं लिया। जब बशारुल असद के ख़िलाफ़ 2011 में शाम में बगावत हुई, शाम में इनकलाब के नारे लगे और लगातार लड़ाई चलती रही। 2015-16 में तो सबसे ज़्यादा शाम में लड़ाई हुई, कई लाख शामी मारे भी गए। उस दौरान भी दरूज़ कम्युनिटी जो है इस इलाके का कंट्रोल अपने हाथ में रखे हुई थी और उसने किसी का साथ नहीं दिया। न तो इनकलाबियों की हिमायत में आकर के इसने लड़ाई की, न ही बशारुल असद के ख़िलाफ़ हथियार उठाया। अब जब सीरिया में बगावत ख़त्म हो चुकी है, पूरे इलाके का कंट्रोल बशारुल असद ने संभाल लिया है और जितने बागी ग्रुप थे, जितने जंगजू ग्रुप थे, उन तमाम को अहमद अशरा ने साथ मिला लिया है। तो अहमद अशरा की कोशिश ये है कि दरूज़ कम्युनिटी को भी साथ मिलाया जाए, इससे हथियार को छीना जाए और इसको भी हुकूमत का पार्ट बनाया जाए। एक अलग अस्करी ग्रुप यहाँ न हो, लेकिन दरूज़ कम्युनिटी इसको मानने को तैयार नहीं है। दरूज़ कम्युनिटी ये चाहती है कि जैसे पहले वो अपने इलाके में खुद मुख्तार थी, उसकी हुकूमत थी, उसकी आर्मी है और किसी हुकूमत की बात को ये कम्युनिटी तस्लीम नहीं करेगी, उसी तरह का मामला अब भी रहे। अहमद अशरा चाहते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा। शाम में कोई और खाना जंगी नहीं, कोई और जंगजू और अस्करी ग्रुप नहीं, सब लोग मिलकर सरकार चलाएंगे। और जब इसके लिए शाम की मौजूदा हुकूमत ने कोशिश की, इन लोगों ने बात नहीं मानी, तो अहमद अशरा ने इनके खिलाफ कार्रवाई की, मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया। और जैसे इसराइल को खबर मिलती है दरूज़ कम्युनिटी के ख़िलाफ़ मिलिट्री ऑपरेशन की, फ़ौरन इसराइल ने हमला करना शुरू कर दिया। और ताज्जुब की बात यह है कि अमेरिका की तरफ से मना करने के बावजूद भी, अमेरिका की तरफ से समझाने के बावजूद भी इसराइल नहीं मान रहा है और शाम के मुख्तलिफ इलाक़ों पर हमला जारी है। अब अहमद अशरा के लिए, सऊदी अरब के लिए, अरब लीग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि शाम में जैसे ही बशारुल असद की हुकूमत का ख़ात्मा होता है, अहमद अशरा की सरकार बनती है, सबसे ज़्यादा राहत की सांस सऊदी अरब की गवर्नमेंट लेती है, अरब लीग के हुक्मरान लेते हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि अगर अहमद अशरा की हुकूमत नहीं बनेगी तो जो बागी या जो इनकलाबी है उनका दायरा सऊदी अरब तक पहुंच जाएगा, सऊदी अरब के लिए मसले खड़े हो जाएंगे। सऊदी अरब की जो सरहद है वो सबसे ज़्यादा शाम के इलाक़ों से ही मिलती है। ऐसे में सऊदी अरब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि शाम में महफूज हुकूमत हो, ऐसी हुकूमत हो जहाँ किसी और की मुदाखलत ना हो, इज़राइल की यहाँ मुदाखलत ना हो, इज़राइल का जासूसी नेटवर्क यहाँ मजबूत ना हो। और अगर सीरिया में इज़राइल का नेटवर्क मजबूत हो गया तो फिर इज़राइल सऊदी अरब तक पहुंच जाएगा और इज़राइल इस तरह अपने ग्रेटर इज़राइल के मंसूबे पर आसानी से अमल करना शुरू कर देगा। उसका जो पूरा मंसूबा है वो पाया तकमील को पहुंचने लगेगा। इसलिए अब सऊदी अरब के लिए भी ख़तरे की घंटी है कि शाम में लगातार इज़राइल इंटरफेयर कर रहा है, मुदाखलत कर रहा है। ये शाम का इंटरनल मामला है, लेकिन जब बात इज़राइल की होती है तो सऊदी अरब भी अपना वो किरदार अदा नहीं कर पाता जो किरदार अदा करना चाहिए था। बहरहाल अहमद अशरा की हुकूमत अगर शाम में मजबूत नहीं हो पाती है तो फिर पूरे इलाके के लिए ख़तरे की नई घंटी बज जाएगी। और शाम में इज़राइल के इंटरफेयर का मतलब यह है कि शाम का जो हाथ है वो सऊदी अरब तक पहुंच जाएगा। उर्दून पर और लेबनान पर पहले से ही इज़राइल का एक तरह से कंट्रोल है, क्योंकि उर्दून की जो मिलिट्री ताकत है वो ख़त्म है, कोई ताकत नहीं है। लेबनान पहले से खाना जंगी का शिकार है, सीरिया के फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह तबाह कर रखा है। और अगर अहमद अशरा ने हिकमत अमली से काम नहीं लिया तो फिर ये भी इज़राइल का एक हमनवा मुल्क बन जाएगा। अभी तक अहमद अशरा ने खामोशी इख्तियार कर रखी है और कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया है। आगे देखना है क्या होता है। मिस्र की जो मिलिट्री ताकत है वो भी ज़्यादा मजबूत नहीं है। पूरे खित्ते में ईरान सिर्फ एक मुल्क बचा हुआ है जो
इसराइल से मुकाबला करने की सलाहियत रखता है और शाम से भी लोगों को उम्मीदें बहुत है, क्योंकि शाम की सरहद इसराइल से मिलती है, फ़लस्तीन से मिलती है, और फ़लस्तीन की आज़ादी, क़िबले अव्वल की आज़ादी का रास्ता शाम से ही हमवार हो सकता है। माजी में जिन लोगों ने शाम पर हुकूमत की है, उन्हीं लोगों के ज़रिए क़िबले अव्वल की आज़ादी हुई है, उन्हीं लोगों के ज़रिए फ़लस्तीन पर मुसलमानों को फ़तह मिली है। तो यही तारीख़ रही है। ऐसे में शाम में अहमद अशरा की हुकूमत बन जाने से उम्मीदें बहुत ज़्यादा है, लेकिन फ़िलहाल उन उम्मीदों में कोई कामयाबी मिलेगी उसके आसार नहीं दिख रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। लेकिन आपसे यहाँ पर गुजारिश है कि मिल्लत टाइम्स के मेंबर बन जाइए, हमारी मेंबरशिप ले लीजिए और सिर्फ 99 रुपये का प्लान ही आप लीजिए, लेकिन हमें सपोर्ट कीजिए। फिर मुलाकात होगी। मिल्लत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया QR कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहां आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना UPI ID डालना है। फिर फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम पर जाएं और वहां जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें। बस आप बन जाएंगे मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर।